Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we solved exercise 7.5 up to question number 4. Today, we are starting exercise 7.5 from question 5th. Students, question 5th, x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. Theta is equal to pi by 4. Then find the value of d2y upon dx square. Students, variable x and variable y, then other variable is theta. Theta is called parametric. It means variable x and variable y both differentiate with respect to theta. So first of all value find आपको होगी dy upon dx होगी, yes or no? फिर dy upon dx का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फाइंड होगा d2y upon dx स्क्वायर। और जो d2y upon dx स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू आएगी वो थीटा के फॉर्म में आएगी और उस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे पाई बाई 4 पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन गिवन x is equal to a cos cube theta, make an equation first, and y is equal to a sin cube theta, make an equation second. Differentiate with respect to theta on both sides of an equation first. Students, variable x of differentiate with respect to theta is dx upon d theta is equal to a is constant as it is, cos cube theta of differentiate with respect to theta comparing x to the power n, you know 3 cos square theta, cos cube theta of differentiate 3 cos square theta and cos theta बेस में बेस का डिफरेंशिएट अगेन होगा तो क्या होगा माइनस का साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू -3a, इसको सेपरेट राइट कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, मेक एन इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? thus y is equal to a sin cube theta, तो differentiate with respect to theta on both side of an equation second, dy upon d theta वहां से फाइंड होगा। differentiate with respect to theta on both sides of an equation second So students, dy upon d theta is equal to a is constant as it is, differentiate of sin cube theta comparing x to the power n, so 3 into sin square theta, बेस में क्या है sin थीटा है, उसका अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा cos थीटा होगा, dy upon d theta is equal to 3a sin square theta cos theta, make an equation 4. Students, are you understanding? Students, first of all find value dy upon dx, then equation 4th divided by equation 3rd, equation 4th divided by equation 3rd. It's okay. So dy upon d theta upon dx upon d theta. Students, it's okay. dy upon d theta upon dx upon d theta, dy upon d theta of value 3a sin square theta cos theta upon minus 3a cos square theta into sin theta
इज इक्वल टू 3a to 3a cancel. Students, you know, in numerator sin square theta and denominator sin theta, it means square cancel to sin theta. Thus numerator in cos theta, denominator in cos square theta, तो cos theta cancel to power 2 is equal to माइनस बताइए इसके न्यूमिनेटर में क्या रिमाइंडर है, न्यूमिनेटर में क्या रिमाइंडर है, साइन थीटा, एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या रिमाइंडर, कॉस थीटा. स्टूडेंट्स, माइनस एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में टेन थीटा. इट्स ओके. सो dy upon dx, value of dy upon d theta upon dx upon d theta is equal to dy upon dx is equal to minus tan theta. It's okay. Minus tan theta. Students, you know, but find the value of d2y upon dx square. But find the value of d2y upon dx square. So again differentiate with respect to x. With respect to x on both sides. स्टूडेंट्स, आपको फाइंड लास्ट में जो फाइंड करना था वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए, और आपने फाइंड क्या कर लिया, dy upon dx. dy upon dx से ये फॉर्म कब आएगी, जब इस dy upon dx का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा. इट्स ओके. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. On both sides. So dy upon dx of differentiate with respect to x is this is first derivative. Again differentiate second derivative. Second derivative is d2y upon dx square. It means इसका x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट होगा वो ये होगा माइनस माइनस. स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, बट हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का डिफरेंशिएट अदर से भी होगा, क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स. स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग. अगर यहाँ पर होता फाइव, क्या होता, फाइव होता, तो यहाँ पर फाइव आता, और फाइव का अगेन डिफरेंशिएट क्या होता, डी फाइव अपॉन डी एक्स. अब यहाँ पर फाइव किस जगह काम कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो थीटा का अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स. स्टूडेंट्स, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा. यू नो डी थीटा अपॉन डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन जो थर्ड है वो वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा. हमें क्या नीड है, हमें नीड है डी थीटा अपॉन डी एक्स. तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी थीटा ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा. जैसे बोलो, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. इट्स ओके. डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, स्टूडेंट्स, माइनस टू माइनस कैंसिल. स्टूडेंट्स, यू नो कोस स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर, चेंज इन न्यूमिनेटर sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, sec फोर थीटा. इट्स ओके. अपॉन 3a sin थीटा. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. अब देखिए, थीटा इस को क्या पुट करना है, पाई बाई फोर. थीटा इस आपको पुट क्या करना है, पाई बाई फोर करना है. तो यू नो d2y upon dx square is equal to sec power 4 और थीटा इज पाई बाई 4 अपॉन 3a into sin थीटा, थीटा इज पाई बाई 4. स्टूडेंट्स, जहां भी थीटा है वहां पर हम पुटिंग क्या कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर देंगे. ठीक है, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4.
So d2y upon dx square is equal to sec pi by 4, sec 45 of value √2, तो √2 power 4 upon 3a as it is, sin pi by 4, तो वैल्यू sin 45 और वैल्यू ऑफ sin 45 1 by √2, 1 by √2. It's okay. Students, you know √2 whole power 4, it means √2 whole power 4, तो √2 whole power 4 it means 2 power half is √2 of whole power 4, 2 2 जा 4, तो 2 power 2 is equal to 4. स्टूडेंट्स तो ये हो गया 4 हो गया, और ये √2 है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये √2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, अपॉन में कितना है 3 है. स्टूडेंट्स आप आराम से यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग कीजिए. इट्स ओके. तो लास्ट जो वैल्यू है d2y अपॉन dx स्क्वायर वो क्या फाइंड हो जाएगी, तो जो लास्ट जो वैल्यू है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन 3a. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने फाइंड कर लिया d2y अपॉन dx स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स ओके, प्लीज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ x³ प्लस y³ माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, then prove that d2y upon dx square is equal to 2a³ xy upon ax minus y square of whole cube. स्टूडेंट्स आपको ये गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आपको 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्रूव करनी है. इट्स ओके. डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. Of an equation first. Of an equation first. Okay. You know x³ of differentiate 3x square plus y³ of differentiate 3y square dot dy upon dx is equal to 3axy minus 3a is constant, minus 3a is constant. It's okay. And xy in multiply, so xy of differentiate with respect to x by multiply method u dot v. It's okay. So x is first, y is second. By multiply method, x as it is differentiate of second, it means y, dy upon dx plus second as it is differentiate of x with respect to x is 1 is equal to 0. It's okay. 3x square plus 3y square dy upon dx. Students, minus 3a multiply in bracket minus 3ax dy upon dx, minus 3a multiply plus y, so minus 3ay is equal to 0. It's okay. Students, you know, first of all find the value dy upon dx. It means value of dy upon dx in left hand side take in left hand side, other value take in right hand side without dy dx. So 3y square dy upon dx minus 3ax dy upon dx is equal to minus 3ay change in right hand side plus 3ay plus 3x square in left hand side change in right hand side minus 3x square. It's okay. Students, in this common 3 dy upon dx in bracket remainder y square minus 3 to cancel, dy upon dx to cancel, only remainder minus ax. It's okay. Is equal to in this common 3 in remainder ay minus x square. It's okay. 3 to 3 cancel. Students,
dy upon dx is equal to coefficient of dy upon dx, कोफिशिएंट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसके डिवाइड में चला जाएगा। क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। स्टूडेंट्स ओके, स्टूडेंट्स आपको जो प्रूव करना है, प्रूव में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इस वैल्यू को ऐसा बनाने के लिए इसमें से कॉमन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। देन तो क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन क्या ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेंगे तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इट्स ओके। तो लास्ट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली डी वाई अपॉन डी एक्स। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट फाइंड द वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स this value again differentiate, this value again differentiate with respect to x for d2y upon dx square. Please write. Students, are you understanding? Very simple question. Again, differentiate with respect to x on both sides. इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपने जो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया है उसका अगेन डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यू नो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इन रेशनल फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशिएट बाय divide method, u upon v, it's okay, is equal to of differentiate v square v as it is, differentiate of u du upon dx minus u as it is, differentiate of v dv upon dx. It's okay. Students, so numerator x square minus ay, denominator ax minus y square. It means square of denominator ax minus y square of whole square. It's okay. Denominator as it is, ax minus y square. Numerator divide x of numerator, divide x of numerator of x square minus ay minus numerator as it is, x square minus ay, divide x of denominator, divide x of denominator, value of denominator ax minus y square. It's okay. Students, you know next step d2y upon dx square, divide ax minus y square of whole square as it is. Students, ax minus y square, you know x square of differentiate with respect to x,
माइनस ए वाई ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट और वाई ऑफ डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, इट्स ओके। माइनस स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ए एक्स ऑफ डिफरेंशिएट ओनली ए माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंशिएट टू वाई dy upon dx, it's okay students। you know value of dy upon dx, here x square minus y upon ax minus y square, x square minus ay upon ax minus y square, इसकी वैल्यू को हम यहां से पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। you know इसको इक्वेशन देते हैं हम सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। d2y upon dx square is equal to ax minus y square of whole square, students ax minus y square as it is 2x minus a is constant as it is, value of dy upon dx from equation second, x square minus ay upon ax minus y square, ax minus y square, it's okay, minus x square minus ay as it is, a as it is minus 2y as it is, value of dy upon dx from equation second into x square minus ay upon y square minus ax, it's okay students। a is same minus 2y as it is, minus 2y as it is, multiply value of dy upon dx from equation second, x square minus ay upon y square minus x square minus ay upon ax minus y square, sorry, ax minus y square from equation second, it's okay students। are you understanding students? you know d2 y upon dx square is equal to students very simple, you know स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है, ये जो वैल्यू है, इसका एलसीएम कितना होगा, ax माइनस वाई स्क्वायर होगा इनका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 2x फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, इसका एलसीएम होगा ax माइनस वाई स्क्वायर और इसका भी एलसीएम कितना होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड ax माइनस वाई स्क्वायर, तो एलसीएम आएगा, एलसीएम फिर इस 2x से मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम इस a से मल्टीप्लाई होगा, ओके। फिर जो एलसीएम आएगा वो नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ax माइनस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स 2x मल्टीप्लाई ax माइनस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट्स इसका एलसीएम यही तो आएगा, तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में फिर ये आ जाएगा, ये सुनो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x को मल्टीप्लाई ax से करेंगे तो 2ax स्क्वायर, फिर 2x को मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर से करो माइनस 2xy स्क्वायर, इट्स ओके। माइनस a मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y, इट्स ओके। दिस सेम कंडीशन x स्क्वायर माइनस ay एज इट इज, ये ax माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय a, so a square x minus ay square and minus 2y multiply this value minus 2x square y minus 2x square y minus minus plus minus 2y multiply plus minus ay, so 2ay square 2ay square bracket close,
स्टूडेंट्स आपने जो इसका एलसीएम ax माइनस वाई स्क्वायर लिया, आपने इसका एलसीएम टेक ax माइनस वाई स्क्वायर लिया, वो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर वैल्यू से। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर पहले से है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल क्यूब। सो ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल क्यूब। स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका जो एलसीएम आया, इसका आपने जो एलसीएम लिया वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर में पहले से होल स्क्वायर है, जब ये सिंगल पावर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी तो पावर क्या हो जाएगी, होल क्यूब हो जाएगी। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप, d2y अपॉन dx स्क्वायर। स्टूडेंट्स ax माइनस वाई स्क्वायर, यू नो 2ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, ओनली ax स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर माइनस ay इन दिस ब्रैकेट, यू नो a स्क्वायर x माइनस ay स्क्वायर प्लस 2ay स्क्वायर, सो प्लस ay स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y डिवाइड बाय ax minus y square of whole cube. It's okay, students? Are you understanding? Please write. Next step, वैल्यू क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यू नो this value multiply this value, so ax multiply ax square, so a square x cube, ax multiply by minus 2xy square, it means minus 2a x square y square, it's okay, plus ax multiply by a square y, it means a cube xy, same condition, minus y square multiply this value, so minus a x square y square, it's okay, minus y square multiply minus 2x y square minus minus plus 2x y 4, 2x y 4, it's okay, minus y square multiply by plus a square y, it means a square y cube minus a square y cube. Okay students, sure? सेम एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई माइनस से, तो इस एक्स स्क्वायर को लेट क्या कर लेते हैं, माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस वैल्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2x4y, 2x4y, सेम माइनस माइनस प्लस, सो प्लस ए वाई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू प्लस ए क्यूब एक्स वाई, इट्स ओके, माइनस माइनस प्लस ए वाई मल्टीप्लाई ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस ए वाई मल्टीप्लाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज सॉल्यूशन इज वेरी लॉन्ग बट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डिवाइड बाय ax minus y square of 4 cube. It's okay students? Are you understanding? Please write. Next step, थोड़ा ऊपर से रफ कर देते हैं। Students, you know d2y upon dx square is equal to, you know,
ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस आर डिडक्टेड, कैंसिल, इट्स ओके। माइनस टू ए स्क्वायर, माइनस टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर and minus ax square y square minus 2ax square y square. So you know 2 times, 3 times, 4 times and 6 times. It means minus 6a square minus 6a x square and y square into y square. It's okay. तो स्टूडेंट्स आपने ये भी स्टेप अपने राइट कर ली, ये भी आपने राइट कर ली, ये भी आपने राइट कर ली और ये भी आपने राइट कर लिया। इनको आपको सीन नहीं करना है, इनको नहीं देखना है। नेक्स्ट ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई कहीं पर है क्या? ए क्यूब एक्स वाई, इट मीन्स 2a क्यूब एक्स वाई, 2a क्यूब एक्स वाई, इट्स ओके। आपने ये भी राइट कर लिया, ये भी राइट कर लिया, इसको सीन नहीं करना है। नेक्स्ट 2xy4, 2xy4 कहीं पर है क्या? नहीं है, 2xy4, इट्स ओके। आपने ये भी सीन कर लिया, ओके, इसको भी आपको माइंड नहीं करना है। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब से प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल हो गया। लास्ट एंड फाइनल वैल्यू 2x4y, 2x4y, इट्स ओके। कंप्लीट वैल्यू अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ 4 क्यूब। Students, are you understanding? Students, you know d2y upon dx square is equal to न्यूमिरेटर इन कॉमन। न्यूमिरेटर में कॉमन क्या है? न्यूमिरेटर में कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है और x y कॉमन है, इट्स ओके। 2xy कॉमन इन न्यूमिरेटर, तो रिमाइंडर इन ब्रैकेट माइनस 3axy माइनस 3axy प्लस 2 कैंसिल, ए क्यूब एक्स वाई कैंसिल प्लस 2x कैंसिल, y4 ओपन y क्यूब प्लस 2 कैंसिल, y2 कैंसिल, x4 अपॉन x क्यूब, इट्स ओके, अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल क्यूब, इट्स ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2xy एज इट इज, 2xy एज इट इज। वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy माइनस 3axy माइनस 3axy प्लस a क्यूब अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ 4 क्यूब। स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy हमने इसको इस तरीके से राइट कर लिया, प्लस ए क्यूब हमने लास्ट में राइट कर दिया। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy ऑफ वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0 प्लस ए क्यूब, इट्स ओके, अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल क्यूब, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0, इट्स ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल क्यूब, हैंस प्रूव। Students, question is very important but solution is very long. Okay students, very important question for board exam. Thanks.